Hello and welcome to the class once again. As I have told you already, Jagannath's son left his home. He took with him his 4-year-old son Gokul Chandra. Jagannath became alone. And then when he encountered a new boy, Nitai Pal, he took it home. Nitai Pal was hiding from his father, and now when Damodar Pal was seeking his lost son, this news reached Jagannath, and Nitai Pal became so restless that he wanted to run away from home. Jagannath quietened his fears, saying, "I mean to hide you where nobody can find you." This aroused boy's curiosity, and he asked Jagannath, "Oh, where? Do show me." Jagannath said, "Not now. If I'm going to hide you just now, people will know. Let the people sleep. Then I'll take you to the hiding place." कहानी आगे बढ़ती है। निताई पाल को छुपने वाली जगह देखने की उत्सुकता है, क्योंकि उसका पिता दामोदर पाल उसको खोज रहा है। जगन्नाथ ने कह दिया, चलो तुमको ऐसी जगह छुपाऊंगा जहां कोई भी नहीं खोज पाएगा, नॉट इवन विलेज पीपल। The hope of discovering the mysterious hiding place delighted Nitai. ये उम्मीद, ये आशा कि एक सीक्रेट, एक मिस्टीरियस हाइडिंग प्लेस उसको देखने को मिलेगा, निताई बहुत खुश हो जाता है। He planned to himself how as soon as his father had gone away without him, he would have a bet with his comrades and play hide and seek. वो सोचता है, प्लान करता है कि जैसे ही उसके फादर चले जाएंगे उसको खोज के, तो वो अपने कॉमरेड्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शर्त लगाएगा और शर्त लगा के हाइड एंड सीक खेलेगा। हाइड एंड सीक समझते हैं ना, लुका छिपी का खेल। Nobody would be able to find him. कोई उसे खोज नहीं पाएगा। Wouldn't it be fun? क्या मजा नहीं आएगा? His father too would search the whole village thoroughly and not find him. That would be rare fun also. उसके पिता भी पूरा गांव ढूंढेंगे, छानेंगे, खोजेंगे और मैं उनको नहीं मिलूंगा, उसमें भी मुझे बहुत मजा आएगा। At noon, Jagannath shut the boy up in his house and disappeared for some time. दोपहर के समय जगन्नाथ ने उस लड़के को अपने घर में बंद कर दिया और कुछ समय के लिए कहीं चला गया। When he came home again, जब वो वापस आया, निताई worried him with questions. निताई ने प्रश्न पूछ के परेशान कर दिया उनको। No sooner was it dark than Nitai said, "Grandfather, shall we go now?" जैसे ही अंधेरा हुआ, निताई ने कहा, दादाजी हम लोग चले? It isn't night yet, replied Jagannath. अभी तक रात नहीं हुई है। A little while later the boy exclaimed, "It is night now, grandfather. Come, let's go." अब तो रात हो गई है पिताजी, दादाजी चलिए चलते हैं। The village people haven't gone to bed yet, whispered Jagannath. जगन्नाथ ने कहा, अभी भी गांव के लोग सोने नहीं गए हैं। निताई waited but a moment. निताई ने बस थोड़ी देर तक इंतजार किया and said, और कहा, They have gone to bed now, grandfather. I'm sure they have. Let's start now. अब तो सोने चले गए होंगे दादाजी, अब तो चलिए। The night advanced. रात बढ़ती गई. Sleep began to weigh heavily on the eyelids of the poor boy. बेचारे बच्चे की आंखें, पलकें बोझिल होने लगी नींद से। And it was a hard struggle for him to keep awake. और जागना उस बच्चे के लिए संघर्ष हो गया।
रात बढ़ने लगी, बच्चे की पलकें बोझिल होने लगी, नींद आने लगी उसे। At midnight, Jagannath caught hold of the boy's arm and left the house. जैसे ही मध्य रात्रि हुई, मिडनाइट हुई, जगन्नाथ ने उस लड़के की बाहें पकड़ी, हाथ पकड़ा और घर से निकल गया। Feeling his way through the dark lanes of the sleeping village, गांव की अंधेरी गलियों में अपना रास्ता तलाशते हुए, टटोलते हुए। Not a sound disturbed the stillness. कोई साउंड नहीं था, कोई आवाज नहीं थी कि वहां की एकाग्रता, शांति, सन्नाटा भंग होता। Except the occasional howl of a dog when all the other dogs far and near would join in. कभी कभी अचानक गांव में रात को एक कुत्ते की रोने की आवाज आती तो आजू बाजू के सब कुत्ते एक साथ हाउल करना शुरू कर देते। Or perhaps the flapping of a night bird, scared by the sound of human footsteps at the unusual hour. कभी कभी नाइट बर्ड, रात की चिड़िया, आउल, डर के पंख फड़फड़ाने की आवाज आती उसके, क्योंकि इस टाइम में, इस समय में, जब रात का समय होता है, जबकि किसी के पैर की आवाज नहीं आती, उस समय अगर ह्यूमन फुटस्टेप्स की आवाज आ रही है तो डर के मारे चिड़िया पंख फड़फड़ाने लगती थी। Nitai trembled with fear and held Jagannath fast by the arm. निताई डर गया और उसने जगन्नाथ की बाह को कस के पकड़ लिया। Across many a field they went. एक के बाद एक कई खेत वो लोग क्रॉस करते चले गए। And at last came to a jungle where stood a ruined temple without a god in it. कई खेत क्रॉस करने के बाद वो एक जंगल में पहुंचे जहां एक टूटा फूटा मंदिर था जिसमें किसी भी भगवान की मूर्ति नहीं थी। What here? Exclaimed Nitai in a tone of disappointment. यहाँ छुपाओगे मेरे को? It was nothing like what he had imagined. ये तो बिल्कुल वैसा नहीं था जो निताई ने इमेजिन किया था। There was not much mystery about it. उसके बारे में तो कोई मिस्ट्री थी ही नहीं, कोई रहस्य नहीं था। Often since running away from home, he had passed nights in abandoned temples like this. घर से भागने के बाद कई बार वो इस प्रकार के टूटे फूटे मंदिरों में, abandoned, forsaken temples में रुका हुआ था, deserted temples में रुका हुआ था। It was not a bad place for playing hide and seek. Still, it was quite possible that his comrades might track him there. Hide and seek खेलने के लिए, लुका छिपी का खेल खेलने के लिए कोई बुरी जगह नहीं थी, पर यह संभावना थी कि उसके कॉमरेड्स, उसके साथी उसे वहां पर पकड़ लेंगे, खोज लेंगे। From the middle of the floor inside, Jagannath removed a slab of stone and an underground room with a lamp burning in it was revealed to the astonished eyes of the boy. उस मंदिर के अंदर पहुंचने के बाद जगन्नाथ ने एक पत्थर का, बड़े से चौकोर पत्थर के टुकड़े को हटाया और अंदर दिखाई दिया एक अंडरग्राउंड रूम, एक तहखाना जिसके अंदर एक लैंप जल रहा था, एक दिया जल रहा था। लड़का एस्टोनिश्ड हो गया, he was surprised. Fear and curiosity filled his little heart. डर भी गया and he became curious. What is this? What are we going to do in this room? In this underground room? Jagannath descended by a ladder and Nitai followed him. जगन्नाथ सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरे, निताई उनके पीछे पीछे। Looking around, the boy saw that there were brass gharas on all sides of him. चारों ओर देखने के बाद लड़के ने पाया पीतल के घड़े हुए रखे हुए हैं चारों तरफ।
In the middle lay spread an आसन, बीच में एक आसन बिछा हुआ है. And in front of it were arranged vermilion, sandal paste, flowers and other articles of puja. आसन के सामने वर्मिलियन, ब्राइट रेड कलर्ड पाउडर, सिंदूर जिसको आप बोलते हैं वर्मिलियन, सैंडल पेस्ट, चंदन का पेस्ट, फ्लावर्स, बाकी पूजा की सामग्री सामने रखी हुई थी. To satisfy his curiosity, the boy dipped his hand into some of the grass and drew out their contents. अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए लड़के ने कुछ घड़ों में हाथ डाला, उसमें जो कुछ भी था उसको बाहर निकाला. They were rupees and gold mohurs. उस घड़े के अंदर क्या था? रुपया और सोने की मोहरें. जगन्नाथ एड्रेसिंग द बॉय सेड, जगन्नाथ ने उस बच्चे को एड्रेस करते हुए, संबोधित करते हुए कहा, I told you निताई that I'd give you all my money. I have not got much. निताई मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुमको अपना सारा पैसा दे दूंगा, ऐसा मैंने तुमसे कहा था. मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है. These घड़ास are all that I possess. जो कुछ भी है वो इन्हीं घड़ों में है. These I'll transfer to you today. और ये सारी चीज़ें मैं आज तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा, तुम्हें दे दूंगा. The boy jumped with delight. All? खुश हो गया निताई, सब कुछ. He exclaimed, उसने आश्चर्य से कहा, You won't take back a rupee, will you? एक भी रुपया तुम मुझसे वापस नहीं लोगे? If I do, said the old man in solemn tones, may my hand be tagged with leprosy. अगर मैं तुमसे एक भी पैसा वापस लूं तो मेरे हाथों में लेप्रेसी हो जाए, कोढ़ हो जाए, कुष्ठ रोग हो जाए. But there is one condition. पर एक शर्त है. If ever my grandson Gokul Chandra or his son or his grandson or his great grandson or any of his descendants should happen to pass this way, then you must make over to him or to them every rupee and every moha here. शर्त ये है, कभी यहां से मेरा ग्रैंडसन गोकुल चंद्र या उसका सन या उसका ग्रैंडसन या उसका ग्रेट ग्रैंडसन या उसका डिसेंडेंट, उसका कोई सक्सेसर, उसका कोई वंशज यहां से इस रास्ते से गुजरा तो जो कुछ भी यहां पर है, एवरी रुपी एंड एवरी मोहर यू हैव टू ट्रांसफर टू हिम. तुमको यहां रखा हुआ सारा पैसा उसको देना पड़ेगा. The boy thought that the old man had gone mad. लड़के को लगा ये बूढ़ा आदमी पागल हो गया है. Very well, he replied, ठीक है. Then sit on this आसन, said जगन्नाथ. चलो बैठ जाओ इस आसन के ऊपर. What for? क्यों? Because पूजा will be done to you. तुम्हारी पूजा की जाएगी. But why? said the boy in alarm. क्यों? लड़का थोड़ा सस्पिशियस हो गया. क्या बात है, क्यों मेरी पूजा क्यों? दिस इज द रूल, ये नियम है. द बॉय स्क्वाटेड ऑन द आसन एज ही वाज टोल्ड. लड़का आसन पर बैठ गया जैसा उसे बताया गया. जगन्नाथ स्प्रेड सैंडल पेस्ट ऑन हिज फोरहेड. उसके माथे पे चंदन लगाया जगन्नाथ ने. पुट अ मार्क ऑफ वर्मिलियन बिटवीन हिज आईब्रोज. उसके आईब्रोज के बीच में सिंदूर का टीका लगाया. Flung a garland of flowers round his neck. उसके गले में फूलों की माला डाला. And began to recite mantras. और मंत्र पढ़ने लगा. To sit there like a god and hear mantras recited made poor Nitai feel very uncomfortable. भगवान के जैसे बैठ के मंत्रों को सुनना, निताई रेस्टलेस हो गया, अनकंफर्टेबल हो गया.
ग्रैंडफादर, ही विस्पर्ड, परेशान होकर बोला, दादाजी। But Jagannath did not reply. जगन्नाथ ने कोई जवाब नहीं दिया and went on muttering his mantras, और लगातार अपने मंत्रों को बोलता चला गया. Finally, with great difficulty, he dragged each ghada before the boy and made him repeat the following woe after him. बड़ी मुश्किल से एक एक घड़े को खींच के निताई के सामने लाया उसने और उससे कहा, मैं जो ओथ, जो कसम बोल रहा हूं, इसको तुम रिपीट करोगे. I do solemnly promise that I'll make over all this treasure to Gokul Chandra, the son of Vrindavan Kundu, the grandson of Jagannath Kundu, or to the son, or to the grandson, or to the great grandson of the said Gokul Chandra Kundu, or to any other descendants of his who may be the lawful heir. I do solemnly promise, पूरी गंभीरता से मैं कसम खाता हूँ कि मैं I'll make over all this treasure to गोकुल चंद्र कुंडू, मैं ये सारा खजाना जो आप मेरे को हैंड ओवर कर रहे हैं, ये मैं गोकुल चंद्र कुंडू को दूंगा. Who is the son of वृंदावन कुंडू, जो वृंदावन कुंडू का बेटा है, और टू द ग्रैंडसन ऑफ, और जो जगन्नाथ का ग्रैंडसन है, या फिर गोकुल के बेटे को और ग्रैंडसन और द ग्रेट ग्रैंडसन उसी गोकुल चंद्र के, या फिर कोई भी उसका डिसेंडेंट, कोई भी उसका सक्सेसर जो कानूनन उत्तराधिकारी है इस ट्रेजर का, उसको मैं ये दूंगा. ये कसम खाने के लिए निताई पाल को कौन बोलता है? जगन्नाथ. The boy repeated this over and over again until he felt stupefied. बार बार लड़का इस चीज को रिपीट करता है और बाद में स्टपिफाइड, ही लॉस्ट द फैकल्टी ऑफ थिंकिंग. सोचना समझना उसको बंद हो जाता है, वो समझ नहीं पाता कि वो क्या बोल रहा है. एंड हिज टंग बिगैन टू ग्रो स्टिफ इन हिज माउथ. उसकी जबान मुंह के अंदर सूखने लगती है. When the ceremony was over, the air of the cave was laden with the smoke of the clay lamp and the breath poison of the two. जब ये सेरेमनी खत्म होती है, जब ये पूजा खत्म होती है, तो उस अंडरग्राउंड रूम की जो हवा होती है, वायु होती है, वो मिट्टी तेल के दिए के जलने के कारण और इन दोनों के सांस लेने और छोड़ने के कारण, पॉइजन के कारण भारी होने लगती है. The boy felt that the roof of his mouth had become dry as dust. बच्चा महसूस करने लगता है कि उसके मुंह का जो तालू है, अंदर का रूफ है, वो इतना सूख गया है जैसे कि रेत. And his hands and feet were burning. उसके हाथों पैरों में जलन होने लगती है. Because of the lack of oxygen. ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो हाथ और पैर उसके जलने लगते हैं. He could breathe only with difficulty. वो सांस भी बड़ी मुश्किल से ले पा रहा था. The lamp became dimmer and dimmer and then went out altogether. वो लैम्प डिम और डिम, धीमा होता चला गया, उसके बाद वो पूरी तरह से बुझ गया. In the total darkness that followed, उसके बाद जो टोटल डार्कनेस हो गई, टोटल अंधेरा हो गया, निताई could hear the old man climbing up the ladder. निताई ने सुना कि वो बूढ़ा आदमी लैडर को क्लाइंब अप करके बाहर जा रहा है. Grandfather, where are you going to? Said he greatly distressed. बिल्कुल परेशान होकर उस बच्चे ने कहा, दादाजी आप कहाँ जा रहे हैं? I am going now, replied Jagannath. You remain here. No one will be able to find you. मैं जा रहा हूँ, तुम यहीं रुको, यहाँ से तुमको कोई नहीं खोज पाएगा. Remember the name Gokul Chandra, the son of Vrindavan and the grandson of Jagannath. याद रखना गोकुल का नाम, जो
वृंदावन का बेटा है और जगन्नाथ का ग्रैंडसन है। He then withdrew the ladder. उसके बाद उसने लैडर को, सीढ़ी को हटा लिया। In a stupefy, pitiful voice, the boy begged, I wanted to go back to father. जब जगन्नाथ ने सीढ़ी हटा ली तो बहुत 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 करुणा दया की आवाज में बच्चे ने बेग किया, मैं अपने पिता के पास वापस जाना चाहता हूं। जगन्नाथ पुट द स्लैब बैक इन इट्स प्लेस, पर जगन्नाथ ने तब तक उस पत्थर को वहां पर वापस रख दिया, बंद कर दिया। He then knelt down and placed his ear on the stone. उसके बाद जगन्नाथ झुका, उस पत्थर के ऊपर कान लगाया, सुनने की कोशिश की। निताई's voice was heard once more. एक बार फिर निताई की आवाज सुनाई दी, Father! And then came a sound of some heavy object falling with a bump. And then everything was still. निताई की आवाज फिर सुनाई दी, पिताजी। और फिर कोई भारी चीज गिरने की आवाज आई। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। Having thus placed his wealth in the hands of a yak, Jagannath began to cover up the stone with earth. इस प्रकार से सारी संपत्ति एक याक यानी यक्ष के हाथ में सौंपने के बाद जगन्नाथ उस पत्थर को मिट्टी से कवर करने लगा, जिससे किसी को पता ना चले कि यहाँ पे क्या है। कोई ऐसा पत्थर है जिसको रिमूव करने से नीचे अंडरग्राउंड रूम है। Then he piled broken bricks and loose mortar over it. उसके बाद मिट्टी डाल के उसने कुछ टूटे फूटे ईंटों को डाला, उसके ऊपर लूज मॉर्टर, सीमेंट, पानी और रेत मिक्स करके मॉर्टर बनाते हैं ना, उसको डाला। On the top of all he planted tufts of grass and jungle weeds. और सबसे ऊपर में घास और जंगली पौधों को उसने लगा दिया। The night was almost finished. इतना काम होते तक लगभग रात खत्म हो चुकी थी। But he could not tear himself away from the spot. पर जगन्नाथ अपने आप को उस स्थान से अलग ही नहीं कर पा रहा था। Now and again he placed his ear to the ground and tried to listen. बार बार वो कान लगाता था जमीन पे और सुनने की कोशिश करता था। It seemed to him that from far, far below, from the bottomless depths of the earth's interior, came a wailing. बार बार उसे ऐसा महसूस होता था, नीचे से, बहुत नीचे से, बहुत गहराई से, धरती के अंदर से एक साउंड आ रहा है, एक वेलिंग साउंड आ रहा है। Somebody is crying, somebody is weeping. नीचे से कोई रो रहा है और उसकी आवाज ऊपर तक आ रही है। It seemed to him that night sky was flooded with that one sound. रात में वो आवाज आसमान में चारों तरफ गूंज रही है, रोने की आवाज। And the sleeping humanity of all the world was awake. सोते हुए वर्ल्ड की, दुनिया की, जैसे मानवता जाग गई है, ह्यूमैनिटी जाग गई है। And was sitting in its bed trying to listen. और मानवता जाग के सुनने की कोशिश कर रही है, कौन रो रहा है। The old man is in his mad fury kept on heaping earth higher and higher. बूढ़ा आदमी अपने एंगर में, अपने पागलपन में, मैड फ्यूरी में मिट्टी मिट्टी का ढेर ऊंचा करता चला गया, जिससे उस आवाज को स्टाइफल कर सके, दबा सके। He
wanted somehow to stifle that sound. वो चाहता था किसी तरह उस आवाज को मैं दबा दूं. But still he fancied he could hear father. पर फिर भी उसे ऐसा लगे कि किसी ने फादर कहा. जब एक गिल्टी कॉन्शियस मन में आता है, वो कॉन्शियस हमको प्रिक करता है, वो चेतना हमको बार बार पिंच करती है. जगन्नाथ ने एक गलत काम किया. उस बच्चे को यक्ष के रूप में ट्रांसफॉर्म करने के लिए उस अंडरग्राउंड रूम में छोड़ दिया. उसके ऊपर में पत्थर लगा दिया, मिट्टी का ढेर लगा दिया, वहां पर पेड़ पौधे लगा दिए, किसी को पता ना चले. पर उसके अंदर जो एक अपराध बोध था, जो एक गिल्टी कॉन्शियस था, वो गिल्टी कॉन्शियस जगन्नाथ को उस जगह से हटने नहीं दे रहा था. बार बार जगन्नाथ को ऐसा क्यों लग रहा था कि नीचे से कोई रो रहा है, और वो रोने की आवाज सरफेस तक आ रही है, ऊपर तक आ रही है. उस आवाज को स्टाइफल करने के लिए, उस आवाज को दबाने के लिए, उस आवाज को रोकने के लिए वो मिट्टी के ढेर को ऊंचा करता चला जा रहा था. He wanted somehow to stifle that sound, but still he fancied he could hear father. पर फिर भी उसने कल्पना की, उसको लगा कि पिताजी कह के किसी ने पुकारा. The sun lighted up the eastern horizon. Jagannath then left the temple and came into the open fields. सूर्य पूर्व दिशा में अपनी लाली फैला रहा था. जगन्नाथ मंदिर से बाहर आया, ओपन फील्ड्स में. There too somebody called out, Father. फिर उसको सुनाई पड़ा, किसी ने कहा Father. Startled at the sound, he turned back and saw his son at his heels. सरप्राइज्ड होके वो पलट के उसने देखा तो उसका बेटा सामने खड़ा है, वृंदावन. Father, said Vrindavan, I hear my boy is hiding himself in your house. मैंने सुना है पिताजी कि मेरा बेटा आपके घर में छुपा हुआ है. I must have him back. मुझे मेरा बेटा वापस करो. With staring eyes and twisted mouth, the old man leaned forward and exclaimed, "You boy?" घूरते हुए आश्चर्य से उस बूढ़े आदमी ने पूछा, तुम्हारा बेटा? Yes, my boy Gokul. He is Nitai Pal now. उसका नाम तो अब निताई पाल है. And I myself go by the name दामोदर पाल. और मैंने अपना नाम बदल के दामोदर पाल कर लिया है. Your fame has spread so widely in the neighborhood that we were obliged to cover up our origin so that people should not refuse to pronounce our name. आपकी तो प्रसिद्धि इतनी ज़्यादा आसपास के गांव में फैली हुई थी कि हमने सोचा कि बेहतर यही होगा कि हम आपके घर के हैं, आपके रिलेटिव हैं, इसको हम किसी को ना बताएं तो ज़्यादा अच्छा है, जिससे कम से कम लोग हमारा नाम लेने में तो आनाकानी ना करें, रिफ्यूज़ ना करें. Slowly the old man lifted both his arms above his head. धीरे धीरे उस बूढ़े आदमी ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए. His fingers began to twitch convulsively, as though he was trying to catch hold of some imaginary object in the air. उसकी उंगलियां
खुलने बंद होने लगी, जैसे वो कोई काल्पनिक चीज हवा में पकड़ना चाह रहा है। He then fell to the ground. उसके बाद वो जमीन पर गिर गया। When he came to his senses again, he dragged his son towards the ruined temple. जब दोबारा जगन्नाथ को होश आया, सेंस आया, अपने बेटे को लेके उसी ruined temple की ओर गया। When they were both inside it, he said, "Do you hear any wailing sound?" कुछ रोने की आवाज सुनाई पड़ रही है तुमको? No, I don't, said वृंदावन। वृंदावन ने कहा, मुझे तो कोई रोने की आवाज नहीं आ रही है। Just listen very carefully. Do you hear anybody calling out, Father? सुनो ध्यान से, कोई पिताजी कह के बुला रहा है। No, वृंदावन बोलता है, नहीं। This seemed to relieve him greatly. बहुत उसको आराम लगा कि इसको कम से कम कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। From that day onwards, he used to go about asking people, "Do you hear any wailing sound?" उस दिन के बाद से वो जिससे मिलता था उससे यही पूछता था, रोने की आवाज आ रही है क्या? कोई रोने की आवाज सुन रहे हो? They laughed at the old madman. लोग उस बूढ़े आदमी पे हंसते थे। About 4 years later, जगन्नाथ lay on his deathbed. लगभग 4 साल बाद की बात है। जगन्नाथ अपने मृत्युशैया पे, डेथ बेड पे पड़ा हुआ था। When the lights of this world was gradually fading away from his eyes and his breathing became more and more difficult, he suddenly sat up in a state of delirium. इस दुनिया की रोशनी जब उसकी आंखों से ओझल होने लगी और सांस लेना उसके लिए मुश्किल और मुश्किल होने लगा, he suddenly sat up in a state of delirium. delirium एक प्रकार की वायलेंट मेंटल कंडीशन होती है, हिंसक मानसिक अवस्था। बीमारी में आदमी एकदम बहुत एग्रेसिव और बहुत वायलेंट हो जाता है और मानसिक तो उसकी प्रॉब्लम शुरू हो चुकी होती है, उस स्टेट को डिलीरियम कहा जाता है। तो वो अचानक डिलीरियम की स्टेट में उठ के बैठ गया। Throwing both his hands in the air, he seemed to search about something, muttering, "Nitai, who has removed my ladder?" अचानक वो उठ के बैठ जाता है और बोलता है, निताई, मेरी सीढ़ी किसने हटा दी? Because he was unable to breathe. अब वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, अब उसको ऑक्सीजन की कमी हो रही है, अब उसको दिखना बंद हो रहा है। जिस तरह से उसने निताई को मारा था कि निताई को भी ऑक्सीजन की कमी हुई थी, कमरा अंधेरा हो गया था, लैंप बंद हो गया था, उसने पूरा स्लैब रख दिया था वापस, उसी तरह से अब उसकी कंडीशन हो रही है। दिखना बंद हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई, वो अब सांस नहीं ले पा रहा है और वो बोलता है, निताई, मेरी सीढ़ी किसने हटा दी? Unable to find the ladder to climb out of his terrible prison, where there was no light to see and no air to breathe, he fell on his bed once more and disappeared into that region where no one has ever been found out, in the world's eternal game of hide and seek. जब उसे वो सीढ़ी नहीं मिली जो उसको इस टेरिबल प्रिजन, इस खतरनाक जेल से, कैद से आज़ाद कर पाती, जिससे वो निकल जाता बाहर, ऐसा जेल, ऐसा प्रिजन जहाँ देखने के लिए कोई रोशनी नहीं थी, सांस लेने के लिए एयर नहीं थी, एक बार फिर वो अपने बेड पे गिरता है और ऐसे रीजन में गायब हो जाता है जहाँ जाने के बाद इस दुनिया के लुका छिपी के खेल में कोई वापस नहीं आ पाया, कोई ऐसे पर्सन को ढूंढ नहीं पाया, यानी जगन्नाथ की डेथ हो जाती है। सो दिस फॉर द स्टोरी, द ट्रस्ट प्रॉपर्टी। समझ में आया आपको अच्छी तरह से? नाउ
Move on to the questions if you are ready. Ready? Exercise 1. Answer the following questions in 1 or 2 words or short responses. Write one word which best describes Jagannath Kundu. जगन्नाथ कुंडू के लिए को आपको एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है. आपसे कहा जाए जगन्नाथ कुंडू को एक शब्द में बोलिए वो कैसा था. What will you say? ऑर्थोडॉक्स कह सकते हैं. उससे भी बड़ी क्वालिटी ये थी, he was a miser. माइजर, कंजूस या ग्रीडी. ग्रीडी लालची. ओके, ऑर्थोडॉक्स कैन बी राइट ऑल्सो, बट ही वॉज अ बिग माइजर. बहुत बड़ा कंजूस था एंड ही वॉज ग्रीडी ऑल्सो. बहुत लालची भी था. What did Vrindavan accuse his father to be when his wife died? वृंदावन अपने पिता को क्या बोलता है जब उसकी पत्नी की मौत होती है? मर्डरर. 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 ट्रीटमेंट नहीं करवाया, उसके कारण उसकी वाइफ की डेथ हुई. सो ही अब्यूज्ड हिज फादर एंड कॉल्ड हिम अ मर्डरर. What two things did जगन्नाथ love the most in the world? दो कौन सी ऐसी चीजें थी जिनको जगन्नाथ बहुत पसंद करता था? कौन कौन सी चीजें थी? हाँ, गोकुल चंद्र एंड मनी. मनी, गोकुल चंद्र एंड मनी. दो ही चीजें तो थी. मनी को पहले लिखना चाहिए वैसे, क्योंकि मनी ज्यादा पसंद करता था, पर आपने आंसर में गोकुल चंद्र पहले कहा, तो जस्ट टू एनकरेज यू मैं गोकुल चंद्र पहले लिख रही हूं. मनी एंड हिज ग्रैंडसन गोकुल चंद्र. ओके. What were the names given to Jagannath by the older generation and the younger generation respectively? कौन से नाम थे जो जगन्नाथ को दिए गए थे ओल्डर जनरेशन के द्वारा और यंगर जनरेशन के द्वारा? जगनाश. वेरी गुड. जगनाश. जगनाश एंड vampire means bloodsucker. What was the name of the new boy who had come to the village? उस नए लड़के का नाम बताइए जो विलेज में आया था. निताई पाल. निताई पाल. What was inside the brass घड़ास? पीतल के घड़ों में क्या रखा हुआ था? हाँ, रुपीज एंड गोल्ड मोहर्स. रुपीज एंड gold mohurs. Rupees and gold mohurs. Name the traveler who was seeking his lost son. उस ट्रैवलर का नाम आपको बताना है जो अपने गुमे हुए बेटे को खोज रहा था. What was his name? दामोदर पाल. Exactly. दामोदर पाल. Who is the yak in the story? इस कहानी में याक यानी कि यक्ष कौन है? निताई पाल. Answer it. निताई पाल. Now, the next exercise. Answer the following questions in 2 or 3 sentences. आपको 2 या 3 sentences में
आंसर्स देने हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी व्हाट डिड वृंदावन इन्फॉर्म हिज फादर, व्हाट वाज हिज फादर्स रिएक्शन? What did Vrindavan inform his father and what was his father's reaction? बताइएगा। कहानी की शुरुआत में वृंदावन अपने पिता को क्या कहता है, क्या इंफॉर्मेशन देता है और उसके पिता का रिएक्शन कैसा होता है? Try to answer the question. कहानी की शुरुआत में वृंदावन कहता है मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, और पिता का रिएक्शन क्या होता है? सारा पैसा जो मैंने तुम्हारे फूड और क्लोथिंग पे खर्च किया है उसको वापस कर दो, फिर तुम चले जाना। Vrindavan informed his father that he was leaving. He was leaving the house Jagannath asked him to Jagannath asked him to pay back all the money that he had spent on his food and clothing, and then go away. ठीक है? Now the next question is, why could Jagannath not live his life like the rishis of the old? जगन्नाथ अपनी जिंदगी ऋषिज ऑफ द ओल्ड, पुराने समय के ऋषि मुनियों की तरह क्यों नहीं जी पा रहा था? एक तो सोसाइटी का असर और दूसरा प्रकृति की डिमांड। जीवित रहने के लिए तो खाना पीना पड़ेगा। जगन्नाथ could not live his life like the rishis of the old, because of these two reasons. आपको पॉइंट वाइज लिखाती हूँ, इट विल बी इजी टू मेमोराइज. फर्स्ट, ड्यू टू influence of degenerate society around him,
degenerate society around him. Second, nature's demand to keep alive, जीवित रहने के लिए जो नेचर की डिमांड होती है, इन दो रीजंस के कारण जगन्नाथ पूरी तरह से ऋषि मुनि जैसा नहीं हो पा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आफ्टर मैरिज did Vrindavan not compromise with the high ideals of his father? Why after marriage? Shall I wipe it out? Answer number 1. Why after marriage did Vrindavan not compromise with the high ideals of his father? अपनी शादी के पश्चात, विवाह के पश्चात वृंदावन अपने पिता के हाई आइडियल्स को फॉलो क्यों नहीं कर पा रहा था, कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं कर पा रहा था? कारण दुनिया, हाँ उसकी बताइए बोलिए, कम ऑन। एग्जैक्टली, नीड्स फुलफिल नहीं हो पा रही थी और वो इमिटेट कर रहा था दुनिया के तौर तरीकों को, है ना। उसकी जो डिमांड थी वो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी, इसलिए ही वॉज अनविलिंग टू पुट अप विद द डिस्कम्फर्ट्स ऑफ हीट एंड कोल्ड, हंगर एंड थर्स्ट। दैट्स व्हाई वृंदावन डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द हाई आइडियल्स ऑफ हिज फादर आफ्टर हिज मैरिज। आंसर 3। Vrindavan did not compromise with the high ideals of his father after his marriage, because now he was unwilling to put up with the discomforts of heat and cold and thirst and hunger. Thirst and hunger. Okay? What two reasons did Jagannath give against using medicines? कौन से दो reasons, कारण दिए जगन्नाथ ने? Shall I wrap it out? कौन से दो reasons दिए जगन्नाथ ने against using medicines? बताइए, कौन से दो कारण थे कि मेडिसिन्स यूज करना आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है? कौन से ऐसे दो रीजंस थे?
Yeah. He said his wife and his grandmother also died like this. Very good, exactly. If costly medicines could save life, how is it that kings and emperors would be immortal? है ना? अगर मेडिसिन्स किसी की जिंदगी बचा सकती तो राजा और शासक क्या हो गए होते? अमर हो गए होते, इमॉर्टल हो गए होते. आंसर नंबर 4. Jagannath gave these two reasons against using medicines. Against using medicines. First, if costly medicines could save life, kings and emperors would have been immortal. Second, second one, it was the time-honored custom of the family time-honored custom of the family not to take medicines before departing from this world. So, that's all for now. Remaining questions we'll take in the next class. Thank you.